یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائے۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ آمین آمین۔ ان دنوں میں ایسا ہوا، کیسر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، اور یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور یہ لوگ یعنی مریم اور یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے بیت لحم کو جو یہودیہ میں تھا وہاں آتے ہیں تاکہ اپنے نام لکھوائیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا، حکم دیا کہ پوری دنیا میں اسم نویسی ہوئے، پوری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، اور مریم اور یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے سفر کر کے یہودیہ کے شہر بیت لحم میں آتے ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 125 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ 128 کلومیٹر کا یہ فاصلہ طے کر کے گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم میں آئے، کیونکہ یہ داؤد کے گھرانے سے تھے۔ اور جن دنوں میں عورتیں حاملہ ہوں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان حالات میں سفر کرنا، اور نہ جانے انہوں نے کیسے سفر کیا، لیکن جب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ گدھے پر بیٹھی ہوئی بیت لحم کی طرف آتی ہے، لیکن یہ ہمیں ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ وہ پیدل چل کے آ رہے تھے یا گدھے پر، لیکن اس طرح کے حالات میں انہوں نے تقریباً 125 یا 128 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور بیت لحم کے شہر میں آئے۔ بیت لحم کے شہر میں بادشاہ اپنی دنیا میں مگن تھا، اور اس نے اعلان کیا کہ پوری دنیا میں اسم نویسی کی جائے، پوری دنیا کے نام لکھوائے جائیں۔ اور وجہ کیا تھی اس کے پیچھے؟ وجہ یہ تھی کہ نبی کی معرفت لکھا ہے کہ جو یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، جو مسیح ہوگا، وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ جب مجوسی آئے انہوں نے ہیرودیس سے پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ سردار کاہنوں کو اور فقیہوں کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔ یہ وہ پیشن گوئی تھی جو میکا نبی نے تقریباً یسوع مسیح کی پیدائش سے 500 سال پہلے کی تھی کہ جو مسیح آئے گا وہ بیت لحم کے شہر میں پیدا ہوگا، وہ بیت لحم کے شہر میں پیدا ہوگا۔ یہ پریڈکشن کی گئی، یہ پیشین گوئی کی گئی کہ جو یہودیوں کا بادشاہ، یہودیوں کا مسیح جو ہے وہ بیت لحم کے شہر میں پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے حاکم نے اعلان کیا کہ جاؤ جا کر اعلان کرو، اور پوری دنیا میں اسم نویسی کی جائے گی، اور پوری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں گے، لیکن نام ایسے نہیں لکھے جائیں گے کہ وہ جس شہر میں ہے اس جگہ پر نام لکھوا لے، لیکن وہ کیا کریں گے کہ سفر کریں گے اور اپنے آبائی گاؤں میں جا کر، اپنے آبائی شہر میں جا کر اپنا نام لکھوائیں گے۔
बादशाह अपनी दुनिया में मगन था। उसका ये आइडिया जो था वो इकोनॉमिकल था, वो टैक्स कलेक्ट करना चाहता था, वो अपनी हुकूमत को और ज्यादा मुस्तकिम करना चाहता था, और ज्यादा मजबूत करना चाहता था। लेकिन याद रखिए कि एक ऊपर भी बादशाह है जो उस बादशाह की दुनिया को कंट्रोल कर रहा था। खुदा ने उस वक्त के ताकतवर शख्स को, रूमी सल्तनत के शहंशाह को पकड़ लिया और उसके दिल पर और उसकी सोचों पर खुदावंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह की गिरफ्त थी। वो ये समझ रहा था कि मैं इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन उसकी दुनिया को भी कंट्रोल मेरा और आपका खुदा कर रहा था। क्रिसमस का पहला पैगाम ये है कि खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है और वो अपने कलाम को पूरा करता है। और मेरा और आपका खुदा तख्त नशीन है, और गॉड इज ऑन द थ्रोन। वो तख्त पर बैठा हुआ है और वो अपने कलाम को पूरा करता है और अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। इस वजह से उन्होंने सफर किया, 128 किलोमीटर का सफर तय करके बैतलहम में आ गए, क्योंकि बादशाह का दिल खुदावंद के कब्जा में है और वो पानी के नालों की मानिंद जिधर जाता है उसे फेरता है। बादशाहों पर बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा मेरा और आपका खुदा है, और वो अपने कलाम को हर तरह के हालात में पूरा करता है। वो अपने कलाम को आज भी पूरा करता है। उसने कहा कि तू मेरी इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। इसके अलावा भी जितने खुदा के वादे हैं वो सारे हाँ के साथ हैं, और हमारा खुदा तख्त पर बैठा है और वो आपके हालात में मदाखलत करता है और अपने कलाम को पूरा करता है। सफर करके आ गए और आकर पूछते हैं क्या मरियम और यूसुफ यरूशलेम में बैतलहम में आए और उन्होंने आकर पूछा कि क्या कोई बेड मिल जाएगा, हमें क्या कोई रूम मिल जाएगा? तो जवाब आया नो बेड नो प्लेस। आज भी इंसान के दिल में यीशु के लिए कोई जगह नहीं। आज भी लोगों के पास यीशु के लिए कोई वक्त नहीं। हम अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं, हम अपनी अपनी दौड़ रहे हैं। हम में से हर एक की दौड़ रुपया पैसा कमाने पर लगी हुई है, लेकिन यीशु के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। यीशु के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं। यीशु को हमने अपना सराया नहीं दिया। लिखा है उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। किनके वास्ते सराय में जगह ना थी? ना खुदा के बेटे यीशु के लिए, और ना मुकद्दसा मरियम के लिए, और ना मुकद्दस यूसुफ के लिए। उनके लिए सराय में जगह ना थी। लेकिन याद रखिए, जब हम अपने सराय में मुकद्दसीन को जगह दे देते हैं, जब हमारे सराय में, जब हमारे घरों में मुकद्दसीन लोग आते हैं, तो हम बरकत पाते हैं। एलिया चला गया बेवा के पास, सारपत की बेवा के पास। उसने कहा थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, इसे खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन एलिया कहता है जाओ पहले मेरे लिए लेकर आ। और जब वो खुदा के खादिम के लिए लेकर आती है, तो फिर जितनी देर कहत रहता है वो नहीं मरती, और आसमान का खुदा उनकी जरूरत को और प्यार को रब्बा करता है। जब हम मुकद्दसीन लोगों को अपने घरों में दावत देंगे, उसको चरनी कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। सराय से क्या मुराद आप लेते हैं? सराया मेरी और आपकी जिंदगी है कि आज मैं और आप उसको अपने सराय में जगह देते हैं, कि आज मैं और आप उसको अव्वल प्रायोरिटी देते हैं, कि आज मैं और आप उसके लिए अपने सराय को खोलते हैं, कि आज और मैं, क्या आज आप और मैं उसके लिए तैयार हैं उसको वक्त देने के लिए।
यीशु जब मुजस्सम होकर इस जमीन पर आया तो कलाम कहता है उसके लिए सराय में जगह ना थी। जब वो इस जमीन पर खिदमत करके आसमान पर चला गया और मुकाशवा की किताब में जब रोया में खुदा और खुदा का बेटा यीशु अपने आप को यूहन्ना पर जाहिर करता है और लौदीकिया की कलीसिया के नाम पे काम देता है, तो वहां भी हमें एक यीशु की तस्वीर नजर आती है। और वो तस्वीर ये है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा। जब जमीन पर था उस वक्त उसके लिए सराय में जगह ना थी। जब रोया में यूहन्ना पर अपने आप को जाहिर किया तो उस वक्त भी यीशु की पोजीशन दरवाजे के बाहर नजर आती है। आज हम क्रिसमस मनाते हैं, हम अच्छा करते हैं, क्रिसमस मनाना चाहिए, बाइबल इसकी इजाजत देती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे अच्छे खाने खाने चाहिए, घरों को सजाना चाहिए, चरनियों को सजाना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों से बढ़कर उसको अपने दिल में जगह दीजिए। यही सबसे बड़ा दिन है और यही हकीकी क्रिसमस है। अगर उसको जगह ना दी तो ये बाकी सारी चीजें बेमायनी रह जाएंगी। इन बाकी चीजों से खुदा इतना खुश नहीं होएगा जितना आपकी मोहब्बत भरी जुबान से होगा। किसी बुजुर्ग के पास आप अपना सारा कुछ ले जाए, अब्बा जी के लिए ले जाए और उनको दे रुपया पैसा दे, क्या वो उससे इतनी खुशी पाएंगे? अगर आप फल फ्रूट लेकर चले जाएं और दुनिया की चीजें लेकर चले जाएं, लेकिन अब्बा जी के पास बैठे ना, उसे पकड़ा कर खुद बाहर भाग जाएं और उसके साथ बैठकर वक्त ना गुजारें और उससे मोहब्बत भरी बातें ना करें और उसके दुख दर्द को ना सुने, तो अब्बा जी को इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह ईमानदारों, जब आप चरनियों को सजाते हो, अच्छा करते हो, सितारे लगाते हो, अच्छा करते हो, घरों को सजाते हो, अच्छा करते हो, लेकिन वो मेरी और आपकी आवाज को सुनना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप उसकी हजूरी में आए और उससे मोहब्बत भरी बातें करें और उसे कहें कि मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मेरी खातिर मुजस्सम होकर इस जमीन पर उतर आया, इस जमीन पर आ गया। उसके लिए सराय में जगह ना थी। आज मैं ये सवाल करूं कि आप में से कौन कौन यीशु को जगह देगा? तो आप कहेंगे भाई गुलफाम, हम इतने पागल नहीं हैं कि यीशु हमारे दरवाजे पर आ जाए, यीशु मेरे पास आए और मैं उसे जगह ना दूं। लेकिन याद रखिए, यीशु जिस रूप में आप उसे इमेजिन किए हुए हैं, जिस रूप में आप सोचते हैं कि वो आपके पास आएगा, वो इस तरह से नहीं आएगा। जब आप खतों को पढ़ते हैं, अबरानियों के खत 13वें बाब की दूसरी आयत है कि मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बास ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की। बेखबरी, आपको ख्याल भी नहीं होएगा यीशु किस रूप में आपके पास आ जाएगा। यीशु ने मत्ती की अंजील उसके 25वें बाब में कहा कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा होंगी और वो चरवाहे की तरह भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। और जब वो जुदा करेगा तो वो अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरा में लो। क्यों कहेगा? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जो आप में उससे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमारियां कह देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ ही किया। तो यीशु इस तरह से भी आपके सामने आ जाएगा। क्या आप उसे सराय में जगह देते हैं?
کیا آپ اسے قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی بیمار کی تیمارداری کی؟ کیا اگر کوئی قید ہے تو اس کے لیے آپ نے شفاعت کی؟ کیا آپ نے اس کا دکھ درد کو سنا؟ اگر کوئی کلیسیا میں بیمار ہے تو کتنے آپ میں سے ان کے پاس جاتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو آپ میں سے کون کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے؟ یسوع اس وقت کہے گا کہ جب تم نے چھوٹوں کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ خدا کا پیغام یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، تو سمجھیے کہ ہم خدا کا ہی خیال کر رہے ہیں۔ یسوع اس وقت کہے گا، کہنا یہ چاہتا ہوں یسوع جو ہے جس طرح آپ سوچے ہوئے ہیں اس طرح آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ وہ ہو سکتا ہے بھائی شہزاد کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے، بہنوں وہ ہو سکتا ہے بہن قبل کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے۔ اس لیے ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیجئے اور اس کو اپنے سرائے میں جگہ دیجئے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے تو میں اسے دھتکار دوں، میں اسے چیز کی ضرورت ہے نہ دوں، اگر بیمار ہے تو میں اس کا پتہ نہ کروں۔ جب آپ ان چھوٹوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو یسوع کہتا ہے تم نے میرے ساتھ ہی کیا۔ چھوٹی سی مثال دے دوں دنیاوی، اس میں اگر بعض دفعہ آپ کے دروازے کی چوکٹ پر نوک ہوتی ہے، دستخط ہوتی ہے، نہ تو اگر آپ کے گھر میں آٹا ہے اور آپ اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ نہیں ساڈے کوئی نہیں آٹا، تو کیا آپ نے اس کو سرائے میں جگہ دی ہے؟ بھائی کے پاس اگر موٹر سائیکل اندر کھڑا ہوا ہے، اس میں پیٹرول بھی ہے، ٹھیک بھی ہے، دوسرا بھائی آ کر کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے یہ ذرا دے، تو کیا آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں موٹر سائیکل خراب ہے؟ تو کیا آپ نے یسوع کی تعلیم پر عمل کیا؟ کلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، جب میں پردیسی تھا تو آپ نے مجھے گھر میں اتارا، جب ننگا تھا تو دیکھ کر کپڑا پہنایا، میں بیمار یا قید میں تیرے پاس آیا۔ یسوع کہے گا جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ پھر دوسری طرف آ جائے گا، بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملاؤنوں میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، اور وہ بھی کہیں گے کدوں تو تے ساڈے کول آئے نہیں، کدوں بے کے آ کے تو بھوکا ہے۔ کیونکہ ہم سوچے ہوئے ہیں، جو تصویر میں یسوع دیکھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع اس طرح سے آئے گا، نہیں اس طرح سے نہیں آئے گا۔ وہ میری اور آپ کی صورت میں بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے، وہ ہم میں سے کسی کی صورت میں بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ اس لیے کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ دی، لیکن اس کرسمس پر آئے عہد کریں کہ ہم اسے اپنے سرائے میں جگہ دیں گے، ہم اسے اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہوگا آپ کا خدا کے لیے۔ ہاللیلویہ، آئیں اس کے لیے زوردار تعلیم دیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ کیا تھا؟ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ کیا بیت الحم شہر میں یہی چرواہے تھے جن پر فرشتہ ظاہر ہوا، جن پر فرشتوں کی ٹولی آئی، جن پر فرشتوں کی ٹولی نے اپنے آپ کو ظاہر کیا؟ اور بھی فرشتے ہوں گے، لیکن فرشتہ ان کے پاس کیوں آیا؟ وجہ کیا ہے؟ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر کیا کر رہے تھے؟ غلہ بانی کر رہے تھے، اپنے غلہ کی نگاہ بانی کر رہے تھے کہ کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، کوئی شیر نہ آ جائے اور اس غلے کو جو ہے وہ ہلاک نہ کر دے، اس غلے کو جو ہے وہ چیر پھاڑ نہ کر دے، کسی بھرے کو اٹھا کر نہ لے جائے، کسی بھیڑ کو اٹھا کر نہ لے جائے۔ تو آج بھی خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکتا ہے، ان چرواہوں کی زندگیوں پر چمکتا ہے جو رات کو اٹھ کر اپنی کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں، جو رات کو اٹھ کر اپنی کلیسیا کے لیے شفاعت کرتے ہیں، جو ان کے لیے رکنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہر جاتے ہیں اور اس خیال میں رہتے ہیں کہ کوئی بھیڑیا کلیسیا میں نہ گھس
जाए और कलीसिया को बर्बाद ना कर दे, पेड़ों को ना फाड़ दे। आज भी खुदा उन पर अपना जलाल चमकाता है जो रात को अपने अल्लाह की निगाहबानी करते हैं। और वो खादम जिन्हें फोन किया जाए फोन ना उठाएं, वो खादम जब शुक्रगुजारी की जाए और शुक्रगुजारी पर ना आए, और वो खादम जो सोए रहते हैं और जिन्हें कलीसिया की फिक्र नहीं होती, उनकी जिंदगी में खुदा का जलाल नहीं चमकता और उन्हें खुदा का मुकाशफा नहीं होता और वो नबूवत नहीं कर सकते, क्योंकि नबूवत करने के लिए जरूर है कि हम बेदार हो, क्योंकि कलाम कहता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठे तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ये चरवाहे बेदार थे और रात को मैदान में रहकर अपने अल्लाह की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता इनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल इनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। अभी खुशखबरी नहीं सुनाई गई, फरिश्ते बैठे हैं और अपने अल्लाह की निगाहबानी करें, और आसमान से एक फरिश्ता आया, उनके पास आ खड़ा हुआ, और क्या लिखा है, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका। क्या चमका? खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। तो फरिश्ते चरवाहे बैठे हुए हैं, खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका। पहले खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और खुदा का जलाल चमक रहा था, और उस जलाल में रहते हुए फरिश्ता ने कहा, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। ये बड़ी खुशी की बशारत थी जो खुदा के जलाल में रहते हुए, खुदा की तजल्ली में रहते हुए, खुदा के नूर में रहते हुए फरिश्तों को दी गई। ये बड़ी खुशखबरी, ये बड़ी अजीम बशारत थी जो खुदा के जलाल में रहते हुए फरिश्तों को दी गई, चरवाहों को दी गई। ये खुशखबरी आम खुशखबरी नहीं, ये वो खुशखबरी है जो खुदा के जलाल में रहते हुए फरिश्ते ने चरवाहों को दी, कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। सारी उम्मत के वास्ते है नहीं, बल्कि क्या है, होगी, है भी लेकिन होएगी भी। सारी उम्मत के वास्ते होगी, सारी उम्मत के वास्ते होगी। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज क्रिसमस के नाकदीन, आज क्रिसमस के मुतअर्सिन, आज क्रिसमस के पैगाम, क्रिसमस पर एतराज़ करने वाले कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि बाइबल में इसकी तालीम नहीं। लेकिन फरिश्ता खुदा के जलाल में रहते हुए चरवाहों को कहता है कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आने वाले दिनों के लिए भी है कि बड़ी खुशी की बशारत है जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, और उसकी उम्मत मैं और आप हैं। पहले हम कोई उम्मत ना थे, लेकिन अब उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम उसकी उम्मत हैं। और पतरस के दूसरे खत में, पहला पतरस 2:9 में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। ये खुशखबरी जो है ये सारी उम्मत के वास्ते होगी, और मैं और आप उसकी उम्मत है। और ये हवाला नए ऐतनामा में से इसी तरह ज़िक्रिया 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में है कि ऐ दुख्तरे सायून तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं तेरे अंदर सकूनत करूंगा। खुदावंद फरमाता है, क्या करूंगा? तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे दरमियान सकूनत करूंगा। खुदावंद फरमाता है, और वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का है। इसलिए तू तेरे सायून तू क्या कर, तू गा और खुशी कर। बाइबल इजाजत देती है कि हम क्रिसमस को मनाएं, क्रिसमस पर खुशी करें, क्योंकि मेरा और
बाप का बादशाह हमारे दरमियान आकर उसने सकूनत की और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का है। मगर फरिश्ता ने कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, एक मुनज्जी पैदा हुआ है और कोई मुनज्जी नहीं, और कोई आपको बाप की हजूरी में नहीं ले जा सकता, और कोई आपको जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई आपको जन्नतुल फरदौस में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि दुनिया का मुनज्जी एक ही है। जिस तरह फरिश्ते ने कहा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद एक ही मुनज्जी है। यीशु के बारे में लिखा है राहत और जिंदगी मैं, उसके सिवा कोई राहत और जिंदगी नहीं है, एक ही मुनज्जी है। और जितने मर्जी नेक अमाल कर ले, जितने मसाब के हैं, वो सारे जन्नत में नहीं जाएंगे। किसी ने कहा ऑल दी वेज गोज टू रोम, रोम को तो जा सकते हैं लेकिन जन्नत को नहीं जा सकते। ओ बाप की हजूरी की तरफ नहीं ले जा सकते। बाप की हजूरी में जाने के लिए सिर्फ एक ही मुनज्जी है, एक ही राह है, एक ही रास्ता है जिस पर चलकर हम बाप की हजूरी में जा सकते हैं। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़ा में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये फरिश्ते किसको कह रहे हैं? चरवाहों को कि निशान दे दिया, निशानी दे दी। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई। एक गिरोह में अब पता नहीं कितने फरिश्ते थे, हम नहीं जानते, मैं भी बहुत से फरिश्ते हूँ, लेकिन कोई टोली थी, कोई क्वायर थी जो आलम बाला से आई थी और कर क्या रही थी? एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये जो गिरोह उतरी फरिश्तों की, ये आलम बाला से आई थी। याद रखिए, ये जो फरिश्तों की गिरोह थी ये तीसरे आसमान से नहीं आई थी, बल्कि आलम बाला पर जहां खुदा का तख्त है उस जगह से आई और हमद करती हुई तमाम आलमों में से गुजरते हुए हमद करते हुए जमीन पर आ गए। और उन्होंने जमीन पर भी आकर कहा कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। आलम बाला पर खुदा की तमजीद क्यों हो? मुनज्जी तो मिला दुनिया वालों को, नजात दहिंदा आया मेरा और आपका। मैं और आप तो सिताइश करें, लेकिन आलम बाला पर किस चीज़ की खुशी थी? जब बागे अदन से खुदा ने आदम और हवा को निकाल दिया तो खुदा कोई खुश नहीं था। खुदा ने उन्हें बनाया था अपनी रफाकत के लिए, लेकिन उन्होंने गुनाह किया और खुदा ने उसको निकाल दिया। और आज उसके बेटे यीशु मसीह के ज़मीन पर पैदा होने से वो जुदाई की दीवार थी, जो जुदाई की दीवार थी वो दरमियान में से गिरने वाली थी। और आसमान खुश है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो रही है और जमीन पर फरिश्ते आकर उसकी तमजीद कर रहे हैं, गडरिये सिताइश कर रहे हैं। मरियम खुशी का गीत गा रही है और चरवाहों ने उसकी सिताइश की। हर तरफ खुशी का समा था और ये खुशी जमीन से शुरू नहीं हुई, ये खुशी आलम बाला से शुरू हुई थी। और फरिश्ते आकर कहते हैं कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में से जिनसे वो राजी है सुलह। खुदा ने अपने बेटे को बेचकर हमारी तरफ उसने सुलह का पैगाम भेजा है, उसने तोहफा दे दिया है, उसने बड़ा गिफ्ट दे दिया है। आज इस गिफ्ट को और तोहफे को कबूल करने की जरूरत है। फरिश्तों ने हमद क्यों की? यहूदी कल्चर ये था कि जब किसी यहूदी शख्स के यहाँ बेटा पैदा होता था तो वो क्या करता था? बाप जो होता था, जिसका बेटा पैदा होता था, वो करता था बैंड बाजा बजाने वालों को बुलाता और वो उसके घर के सामने आकर 7 दिन बैंड बाजा बजाते थे।
اور ان بینڈ باجا بجانے والوں کو جو بلانے کی ذمہ داری تھی، ان کو جو انویٹیشن دینے کی ذمہ داری تھی، وہ کسی اور کی نہیں ہوتی تھی بلکہ اس سفید بچے کے باپ کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو خدا کے بیٹے کی پیدائش پر خدا کے فرشتے آسمان سے آئے اور انہوں نے آ کر زمین پر اس بڑی خوشی کی بشارت کو دیا، اور خدا کے بیٹے کی پیدائش پر خدا کی قوائد آئی، خدا کا بینڈ باجا آیا، اور اس نے زمین پر آ کر خدا کی ستائش کی، اور اس نے کہا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو چرنی میں کون بینڈ باجا بجاتا، کون لے کر آتا؟ یوسف کا لانا ویسے بھی نہیں بنتا تھا۔ فرشتوں نے گیت گا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو چرنی میں آیا ہے یہ یوسف بڑائی کا بیٹا نہیں بلکہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس وجہ سے ہم آئے ہیں۔ ہمیں اس کے باپ نے بھیجا ہے کہ ہم جا کر زمین پر اس کی کیا کریں؟ ستائش کریں۔ ہم زمین پر جا کر اس کی ستائش کریں۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ خدا کے بیٹے کی پیدائش پر فرشتوں نے اس کی ورشپ کی، فرشتوں نے اس کی ستائش کی، فرشتوں نے آ کر پرستش کی۔ تو میرا اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس کے بیٹے یسوع مسیح کے مجسم ہو کر اس زمین پر آنے پر ورشپ کریں، خوشی کا اظہار کریں، گیت گائیں اور دنیا والوں کو پیغام دیں کہ دنیا کا منجی فی الحقیقت یسوع مسیح ہے۔ اگر فرشتوں نے ستائش کی تو ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی کیا کریں؟ ستائش کریں، ہم بھی کیا کریں؟ تعریف کریں۔ خدا کے بیٹے کی پیدائش پر فرشتوں نے ستائش کی۔ یاد رکھیے، جن گھروں میں پرستش ہوتی ہے اس گھر میں بدرو ٹھہر نہیں سکتی۔ جس گھر میں خدا کی پرستش ہوتی ہے اس گھر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس گھر میں خدا کی پرستش ہوتی ہے اس گھر میں کوئی بیمار نہیں رہ سکتا، کیونکہ خدا کی پرستش میں قوت پائی جاتی ہے۔ اور پوری دنیا میں لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں لیکن خدا کن کو ڈھونڈتا ہے؟ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کو۔ خدا کسی کو نہیں ڈھونڈتا لیکن وہ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے کرسمس کے موقع پر کرسمس کیرل کیجئے، کرسمس کے موقع پر پارٹیاں بلائیے اپنے گھروں میں، کرسمس کے موقع میں اپنے اپنے گھر پر بیٹھ کر اس کی پرستش کیجئے۔ یہ خدا کو بہت پسند آئے گا۔ دنیا خدا کو ڈھونڈتی ہے لیکن خدا ان کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ ہمیں کچھ لوگوں کی مانند بننا ہے۔ پہلے تو ہمیں ان کی طرح نہیں بننا جنہوں نے سرائے میں جگہ نہ دی۔ ہمیں فرشتوں کی مانند اس کی پرستش کرنی ہے۔ اگر آج ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کی پیدائش پر گیت گاتے ہیں اور گلیوں میں جاتے ہیں اور اپنے ہمسایوں کے گھر جاتے ہیں، قریبی گاؤں میں جاتے ہیں، تو ہم بھی فرشتوں کی طرح اس کی بشارت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم فرشتوں کی مانند اور اس کی بشارت دیں اور اس کے بیٹے یسوع کے مجسم ہو کر آنے کا پیغام دیں۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا ہوا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ کیا کیا انہوں نے؟ جو بات جیسا ان کو بتایا گیا تھا، جیسا ان کو کہا گیا تھا، وہ سارا کچھ اسی طرح سے دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہوں نے پھر مشہور کی اس بات کو۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تو عجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہمیں فرشتوں نے کہا ہے ویسا ہی سب کچھ دیکھ کر اور جیسا انہوں نے سنا تھا ویسا ہی دیکھ کر وہ خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ خدا کی حمد کرتے ہوئے اور تمجید کرتے ہوئے پھر لوٹ گئے۔ خدا نے فرشتوں کو کیوں چنا؟ خدا نے چرواہوں کو کیوں چنا؟ فرشتے ان پر ظاہر کیوں ہوئے؟
पहली वजह कि ये जो चरवाहे थे, ये इनकी खिदमत जो थी वो मुबश्शिर की तरह होती है। ये की तरह खिदमत नहीं करते थे, ये मुबश्शिर की तरह खिदमत करते थे। जिस तरह पादरी तो एक जगह ठहर कर कलाम सुनाता है, एक गांव में, एक इलाके में, लेकिन मुबश्शिर वो होता है जो एक जगह कलाम सुनाए, अगले दिन किसी और जगह पर, नेक्स्ट डे फिर किसी और जगह पर। और चरवाहे जो थे, ये बीज जो थे, ये मुबश्शिराना खिदमत, मुबश्शिराना नबीयत की इनकी खिदमत थी, क्योंकि फरिश्ते आज इस इलाके में थे, कल इन्होंने किसी और इलाके में भेड़ बकरियों को हाँक कर लेके जाना था और ये मूव करते रहते थे। इस वजह से खुदा ने इस ब्रेकिंग न्यूज को ब्रेक करने के लिए फरिश्तों को भेजा और उन्होंने जाकर चरवाहों पर इस न्यूज को ब्रेक किया। और फिर चरवाहों ने जगह जगह जाकर जैसा उनसे कहा गया था, जैसा उन्होंने सुना था, वैसा देखकर उन्होंने वो बात जो उस बच्चे के हक में कही गई थी वो मशहूर कर दी। और इर्द गिर्द जहां तक वो गए, उन्होंने उसकी मनादी करना शुरू कर दी, उन्होंने हमदो सना करना शुरू कर दी, क्योंकि मुमकिन नहीं कि खुदा के बेटे को देखकर कोई उसकी हमदो सना और सिताइश ना करे। जब खुदा के बेटे से आपकी मोहब्बत हो जाती है, जब आप खुदा के बेटे को सजदा करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप हमदो सना करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से फरिश्ते जो हैं वो चरवाहों पर ज़ाहिर हुए और चरवाहों के सबब से वो न्यूज़ जो उन्होंने उस वक्त ब्रेक की, होते होते आज हम तक भी वो न्यूज़ पहुंच गई। ये बैतलहम में थी, साथ ही यरूशलेम था जहां हैकल थी, लेकिन खुदा ने फरिश्तों को भेजा और वो चरवाहों के पास आए। काहिनों के पास नहीं गए जिनके पास पुराना एहदनामा था, शरीयत थी, लेकिन फरिश्ते जाकर चरवाहों पर ज़ाहिर हुए, क्योंकि चरवाहे जो थे वो मूव करते थे। फिर दूसरी बात चरवाहों पर ज़ाहिर होने की वो ये है कि ये जो चरवाहे थे, ये यरूशलेम में जो काहिन थे उनके बरे चराते थे, उनकी भेड़ बकरियों को चराते थे। और खुदा ने उन्हें ये पैगाम दिया कि तुम जो काहिनों के बरे चुराते हो, ये बरे एक साल बाद कुर्बान हो जाएंगे, ये इस ईद पर कुर्बान हो जाएंगे। आओ मैं तुम्हें उस बरे की तरफ लेकर जाऊं जो दुनिया का गुनाह उठा कर लेकर जाने वाला है, और जो एक ही दफा कुर्बान होगा और अब्दी खलासी कराएगा, अब्दी कफारा करवाएगा। तुम जिन बरों की फिक्र में हो, तुम जिन बरों को चरा रहे हो, वो साल बाद कुर्बान होते हैं, अगले साल फिर कुर्बानी करना पड़ती है, लेकिन एक बरा ऐसा जाहिर हुआ है जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा है, और जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा कि देखो ये खुदा का बरा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। और चरवाहों पर जाहिर होने का सबब ये था कि ये बरे, इनसे सिर्फ वक्ती कफारा होएगा, लेकिन एक ऐसा बरा जाहिर हुआ है जो आपको अबदी कफारा देगा, जो हमेशा के लिए आपके गुनाह मिटा देगा। पहली बात, हमें उसे अपने सराय में जगह देगा और उसकी तरह नहीं बनना जिन्होंने सराय में जगह ना दी। दूसरी बात, हमें किनकी मानिंद बनना है? फरिश्तगान की तरह, उन्हीं की तरह वर्शिप करना है। तीसरी बात कि हमें चरवाहों की तरह बनना है, और जहाँ जाएं यीशु की गवाही दें, जहाँ जाएं यीशु के बारे में बताएं कि यीशु ही दुनिया का मुनज्जी है, वही राह और जिंदगी है। हमें चरवाहों की मानिंद बनना है। चौथी बात, हमें सितारे की मानिंद बनना है। आपको पता है जब यीशु पैदा हुआ तो आसमान पर सितारा चमका, और उस सितारे ने क्या काम किया? और पूरब देश के मजूसियों ने एक देखा अजब नज़ारा था। उन्होंने एक अजब नज़ारा देखा कि आसमान पर एक सितारा चमक रहा है, और वो सितारा अपने चमकने से दुनिया के रहने वालों को ये पैगाम दे रहा था कि कोई बादशाह पैदा हुआ है, कोई बड़ी हस्ती पैदा हुई है। और वो जो सितारा शनास थे, वो जो सितारों में अपना मुस्तकबिल देख रहे थे, सितारा उन्हें ये कह रहा था कि तुम्हारा फ्यूचर मेरे पास नहीं, आओ मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं जिसके पास आपका फ्यूचर है, जो आपके मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है, जो आपके मुस्तकबिल को बना सकता है। हमें सितारों की मानिंद बनना है।
हमें सितारे की तरह चमकना है और सितारे की तरह गैर कौमों की रहनुमाई करना है। और उसके लिए ज़रूर है कि फिर हमारे अंदर कलाम की रोशनी हो, कलाम की चमक हमारे अंदर हो। अभी ये नया साल आने वाला है, हर कोई बैठ जाएगा टीवी पे सितारों का हाल देखने के लिए, और जो सितारा परस्त हैं और सितारा शनास हैं वो सितारों की मूवमेंट से, उनके चमकने चमकाने से और उनकी रोशनी से दुनिया का मुस्तकबिल बताएंगे, दुनिया का फ्यूचर बताएंगे। हम में से भी बतेरे अपना अपना वो बुर्ज देखेंगे और सितारे से रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सितारा एक ही है जिसने यीशु तक रहनुमाई की और उसने कहा कि आओ जिसके पास मेरा और आपका मुस्तकबिल है उसके पास आओ। दुनिया के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होने वालों, तुम्हें आलम बाला पर भी फिक्रमंदी की जरूरत नहीं रहेगी। अगर इसके पास आ जाओगे, अगर यीशु के पास आ जाओगे, सितारे ने उन्हें क्या किया, रास्ता दिखाता हुआ उन्हें यीशु के पास लेकर आ गया कि यहाँ फ्यूचर है, यहाँ आपका मुस्तकबिल है। चौथी बात, फिर सितारे वाली बात भी हमने कर ली, फिर हमें मजूसियों की मानंद बनना है। मजूसियों ने क्या किया? मजूसियों ने अपने स्टेटस के मुताबिक, अपने रुतबे के मुताबिक बादशाह के पास गए, यानी ये जो लोग थे ये बड़े रुतबे वाले थे, और ये फिर बादशाह के महल में चले गए। बादशाह की तो रोब भी बड़ी थी, बादशाह की तो दहशत बड़ी थी, और यरूशलेम के सारे लोग घबरा गए जब उसने बुलाकर पूछा ना कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ? उन्हें लया साड़ी जानते फिर आ गया, ये उनको कोई ना कोई कत्ल करेगा, क्योंकि बादशाह जो था वो बड़ा जालिम था और उसने अपनी प्यारी बीवी को भी कत्ल कर दिया और अपने भाई को उसने कत्ल करवा दिया। जिसको भी वो समझता था ना कि उसकी बादशाहत की राह में हायल रुकावट है, वो उसे मरवा देता था। तो उसके पास जाना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। मजूसी अपने स्टेटस के मुताबिक हेरोदिस बादशाह के महल में चले गए और उन्होंने जाकर बताया कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है और हम उसका सितारा देखकर उसको सिजदा करने आए हैं। हमें मजूसियों की तरह अपने स्टेटस के मुताबिक, अपने मकाम के मुताबिक, अपने रुतबे के मुताबिक खुदा के कलाम की गवाही देनी है। फिर एक किस्म रह गई है, एक ग्रुप रह गया है और उसके मानिंद हमें नहीं बने। अगर हम इनकी मानिंद नहीं बनेंगे तो हम ऑटोमेटिकली उसकी मानिंद बन जाएंगे। हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं तो हमें इनमें से किसी एक ग्रुप की मानिंद, किसी एक किस्म के लोगों की मानिंद बनना है। पहली बात कि सराय में जगह देनी है, और दूसरा कि उन लोगों की मानिंद नहीं बनना जिन्होंने कहा कि सराय में जगह ना दी। फिर हमें फरिश्तगान की मानिंद बनना है, या हमें चरवाहों की मानिंद बनना है, या हमें सितारे की मानिंद बनना है, या फिर हमें मजूसियों की मानिंद बनना है। अगर हम इनमें से किसी की मानिंद नहीं बनते तो फिर हम बने बनाए हेरोदिस की सूरत में रह जाते हैं। हेरोदिस ने क्या कहा मजूसियों को कि जाओ जाकर देखो और अगर मिल जाए तो मुझे भी आकर बताना ताकि मैं भी उसे सिजदा करूं, ताकि मैं भी क्रिसमस मना लूं। लेकिन दिल के अंदर कुछ और था। दिल से वो खुदा को सिजदा नहीं करना चाहता था, यीशु को सजदा नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उसको मरवाना चाहता था। आज भी अगर हम इनमें से किसी के मानिंद नहीं बनते तो हम हेरोदिस की मानिंद हो जाते हैं। हेरोदिस ने कहा कि मुझे भी बताना, लेकिन दिल से मुतफिक नहीं था। आज हम भी क्रिसमस, हम में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें क्रिसमस मनाना है, लेकिन बातन में कुछ और चल रहा है। बातन में ये चल रहा है कि बस ये 24 की रात गुजरने दे। दिल खोलते हैं हम अपनी अपनी बॉटल, और ये खुदा को सिजदा करने वाले हैं, ये हेरोदिस की मानिंद हैं। इनके दिल में कुछ और है, बातन में कुछ और है, और ये भी क्रिसमस मना रहे हैं। जिस तरह हेरोदिस ने कहा कि जाओ जाकर देखना, मैं भी क्रिसमस मनाऊंगा, मैं भी बड़ा दिन मनाऊंगा, लेकिन बातनी तौर पर अंदर तो कुछ और ही सोचें चल रही थी। तो इसलिए गौर कीजिए, हमें इनमें से किसी एक ग्रुप की मानिंद बनना है। हेरोदिस की मानिंद मत बनिएगा और उन लोगों की मानिंद भी मत बनिएगा जिन्होंने कहा कि सराय में जगह ना दी। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप में से हर एक को